So Lord, we pray in the name of Jesus. प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं And right now we expose every false altar in this land in Jesus' name. और जितने भी इस जगह पर जो शहर में जितने बंधन है उसे आपके नाम में समर्पित करते हैं Every altar that is worshiping anything other than the living God, we expose it in the spirit realm. जितने वेदी जीवित परमेश्वर को छोड़कर बाकी चीजों में जो उपासना कर रहे हैं उन सबों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं We expose those altars in Jesus' name. We expose it to light. उन सारे वेदियों को हम उजियाले में प्रभु प्रकट कर देते हैं We expose it to the fire of God. हम परमेश्वर के आग में उसे प्रकट कर देते हैं We know that you are a God who answers by fire. प्रभु आप हम जानते हैं कि आप वो परमेश्वर है जो उत्तर आग के द्वारा देते हैं And so we pray that your fire will descend upon this city, Lord. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आग इस जगह पर उतरने पाए That your fire will descend upon our nation, oh God. प्रभु हमारे राष्ट्र पर आपकी आग उतरने पाए And that there will be a clear distinction between those who serve God and those who do not serve God. प्रभु बड़े स्पष्ट रीति से जो आपकी सेवा कर रहे हैं जो आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं उनकी पहचान हो सके We believe that this conference is prophetic for this city and for this प्रभु nation. हम विश्वास करते हैं कि ये सभा इस शहर के लिए और देश के लिए एक नबूवत का कारण बनेगा And we believe, Lord, for you are going to raise certain key prayer warriors in this conference. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि इस सभा के द्वारा आप मुख्य प्रार्थना योद्धाओं को उठाकर खड़ा करने वाले हैं We thank you because you're going to change their face. You're going to give them a new language. You're going to give them a new understanding heart. And you're going to give them a new identity, Lord, during these few days. प्रभु इन दिनों में आप लोगों के चेहरे को उनके भाषा को उनके विचारों को उनके जीवन शैली को इस सभा के द्वारा आप बदलने वाले हैं We thank you. प्रभु धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं And in Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं And everybody said an amen. सभी लोग कहेंगे You know, when I was coming here, I saw this beautiful vision of this lady that is like very well dressed, like superior dressed, very beautifully dressed. और जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने एक दर्शन को देखा कि एक महिला बहुत अच्छे से वस्त्र पहन के बहुत अच्छे से जो है वो दिख रही थी And then I started asking the Lord, is this regarding the conference? Is it regarding the city? What is it that you are trying to speak to us? और मैं प्रभु से पूछने लगा कि प्रभु आप क्या इस सभा के बारे में या इस शहर के बारे में या किस विषय में जो है आप मुझसे बातें कर रहे हैं And I felt the Lord was talking about the church in the city, how the Lord is beautifying the church in this city. और प्रभु ने मुझसे कहा कि नागपुर के कलीसिया को परमेश्वर कैसे सुंदर रीति से बना रहा है उसके बारे में बता रहा था The church is being beautified. कलीसिया सुंदर बनाई जा रही है And for all the dear sisters in this place, you know that beautifying is a long process. It takes time. और बहनें बहुत अच्छे से जानती है कि सुंदर दिखने के लिए कितना सारा समय उसमें जाता है Come on, brothers don't take a lot of time. भाइयों को ज्यादा समय नहीं लगता I don't know about the brothers in Nagpur, but at least in Bangalore, we don't take a lot of time to beautify ourselves. नागपुर के भाइयों के बारे में नहीं पता लेकिन बैंगलोर के लोगों को जो है सुंदर दिखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है We just take a bath, we just comb our hair, and we get out of the house. बस नहाते हैं बाल करते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं You know, beautifying is a process and it takes a long time. सुंदर दिखने की जो प्रक्रिया है उसके लिए बहुत अधिक समय लगता है And the Lord, He is working on the church one day at a time. और परमेश्वर जो है कलीसिया के ऊपर में उसी प्रकार से दिन प्रतिदिन काम कर रहा है The Lord is working in areas that you don't see and understand. परमेश्वर उन क्षेत्रों में जहां हम समझ नहीं सकते देख नहीं सकते उन क्षेत्रों में प्रभु काम करता है The Lord is touching areas that you thought, I want to ignore, I want to just not even talk about this. I want to brush it under the carpet. But the Lord wants to still touch those areas and beautify, help you, make sure that you're healed and whole in every area. जिन क्षेत्रों के विषय में आप बात नहीं करना चाहते जिन बातों को आप रहस्य रखना चाहते जिन बातों को आप छुपाना चाहते हैं परमेश्वर उन्हीं क्षेत्रों में आपके लिए जो है उन क्षेत्रों में बात करना चाहता है Prophetically, I'm seeing there are certain issues that the church in the city has not talked about. There are certain things that we don't want to address openly out in the front.
the Lord is saying, in this season, the Lord is raising men and women of God from this city who will address it, who will confront it, who will talk about it, who are going to be bold about confronting certain issues in the church. और मैं देखता हूँ अपने भविष्यवाणी के उन नजरों से कि कई ऐसे लोग बहुत से चीजों को छुपा कर रखते हैं, उन विषयों में खुल्लम खुल्ला कलीसिया में लोगों के साथ चर्चा ही नहीं करते। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर उन लोगों को उभार रहा है, खड़ा कर रहा है, जो लोग खुल्लम खुल्ला कलीसिया और लोगों के सामने ऐसे बातों के विषय में चर्चा करेंगे। And there is going to be a cleansing anointing that will flow through this city in the name of Jesus. यीशु के नाम से शुद्ध और चंगा करने वाला एक तेल इस शहर में बहेगा। Amen. आमीन। And it will come into your home वो in आपके Jesus' घरों name. में आएगा। It will come into your marriage in Jesus' name. यीशु के नाम से आपके विवाह में भी आ जाएगा तेल। It will come into your personal prayer life. आपके व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में भी आ जाएगा। It will come into your secret life that nobody knows about. That cleansing flow is coming even into your secret life. और जो बातें जो जीवन आपका रहस्यमय था, उस रहस्यमय जीवन में वो तेल आपके रहस्यमय जीवन में उतर रहा है। See, this 21 days that we are spending in the presence of the Lord, it is not for enjoyment. 21 दिन की जो सभा यहाँ पर हो रही है, मौज मस्ती के लिए नहीं है। It is for cleansing. ये शुद्ध होने के लिए है। It is for chiseling. ये जो है हमें तोड़ने के लिए है। Because if we are ready, अगर हम तैयार हैं, if we are prepared, अगर हम पूरी तरह से तैयार हैं, then our city will experience revival. तो तभी हमारा शहर बेदारी को देख पाएगा। If our city will experience revival, अगर हमारा शहर ने बेदारी को देख लिया, then a few states that are surrounding Nagpur, all of those states will catch revival. तो जो जितने राज्य नागपुर के महाराष्ट्र के इर्द गिर्द है, वो लोग भी उस चिंगारी को पकड़ लेंगे। And if they catch revival, I assure you the whole of the nation of India will catch revival. एक बार आजू बाजू के राष्ट्र उस चिंगारी बेदारी के चिंगारी को पकड़ लेंगे, तो मुझे निश्चित पता है कि हमारा भारत देश बेदारी जरूर देखेगा। So often we've been looking to the West, we've been looking to the preachers who come on God TV to bring revival to India. I'm telling you, it will come from your house, it will come from your church, it will come from your prayer room in Jesus' name. कई लोग जो है बेदारी के लिए दक्षिण देशों की ओर देखते हैं, गॉड टीवी में देखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बेदारी वो आपके मंडली, आपके शहर से, आपके प्रार्थना जीवन से जो है वो उभरने वाली है। There is a revival coming in your prayer room. आपके प्रार्थना कक्ष में बेदारी आ रही है। There is a revival coming in your relationship with God. परमेश्वर के साथ के संबंध में एक बेदारी आ रही है। There are certain things that you thought you could never feel before. It is changing today. Your heart is coming back to life in Jesus' name. आपने सोचा नहीं था कि ये चीजें आपके साथ हो पाएगा, लेकिन एकाएक आपका दिल परमेश्वर के नजदीक जा रहा है। Those who struggled to pour a little tears in the presence of God, starting today, you will be able to cry and weep and break your heart in the presence of God like a small baby in Jesus' name. आप में से कई लोग जो है आंसू बहाने में हिचकिचाते हैं, लेकिन इन दिनों में जो है आप ऐसे आंसू बहाएंगे जैसे एक छोटा बच्चा आंसू बहाता है। The Lord is taking the heart of stone and giving us a heart of flesh. प्रभु जो है पत्थर के हृदय को निकाल रहा है और मांस के हृदय को दे रहा है। A heart that is so numb to the move of God. He's taking that heart and he's putting a heart which is like a baby crying every time she or he sees the Father coming. He will or she will cry saying, pick me up. I want you. I need you. I can't do a day without you. और परमेश्वर ऐसे हृदय को जो बिल्कुल संवेदन नहीं है, ऐसे हृदय को निकालकर एक बच्चे के समान आपको जो है दिल देगा। जब कभी वो बच्चा अपने पिता को देखता है, वो कहता है मेरे पप्पा, और तुरंत वो अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। उस प्रकार का जो है हृदय आपको देगा। You know, in the world, if you look at somebody who is constantly crying, you will say, she's not mature, she's not stable. और कई बार जब आप संसार में लोगों को देखते हैं जो बस रोते हैं, तो आप बोलते हैं अभी तक वो परिपक्व नहीं हुआ। You know, give her some more time.
हम कहते हैं उसे थोड़ा सा और समय देना पड़ेगा। She cries for everything. हर चीज के लिए रोती है, She's not ready yet for marriage. अभी तक वो शादी के लिए तैयार नहीं है। But I'll tell you, it's different in the kingdom of God. लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये बिल्कुल भिन्न है। Your maturity is known by your ability to become like a baby. और आपकी परिपक्वता इस बात पे निर्भर करता है कि आप एक बच्चे के समान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। Your maturity is not known by the elegance of the clothes you wear and how you do your hair and how good you look. Your maturity is known by how much of a baby you can be in the presence of और God. परिपक्वता इस बात पर निर्धारित नहीं करता कि आप कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, आप किस प्रकार से बाल किए हैं, आप किस प्रकार से जो है आपकी जीवन शैली, लेकिन इस बात पे परिपक्वता निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से बच्चे बनते हैं। That is why Jesus said, "Blessed are the poor." Everybody say poor. सभी लोग कहेंगे पुअर, गरीब। Do you know that poor people don't have dignity? और दीन लोग जो होते हैं उनके पास में कोई सम्मान नहीं होता। You know, this evening I just came down from the hotel because I was about to be picked up to come into this meeting. मैं होटल से निकला, मुझे यहाँ पे सभा में आना था, मैं नीचे उतरा। And as I came down, there was a man over there who was asking for money. और वहाँ पे एक व्यक्ति को देखा जो भीख मांग रहा था। And suddenly I realized, oh, I forgot my wallet in the room. और मैं बोला अचानक कि मेरा पर्स को मैंने अपने कमरे में छोड़ दिया। And I was like, sheesh, I could have just helped him. मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं मदद कर पाता। So I said, I'm sorry, I don't have anything. मैंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे क्षमा करे। And this guy, so I was walking outside the passage of the hotel and I was praying. मैं होटल के बाहर में चलते चलते मैं प्रार्थना कर रहा था और ये व्यक्ति, And this guy, he's just observing me. वो मुझे बस गौर से देख रहा था। And every time I turn and I come back, he will again come, hoping that I will give something this time. जब मैं चलते चलते वो किनारे में जाके जब वापस आता तो हर बार वो भीख मांगता आशा के साथ कि मैं कुछ उसे दे दूं। I'll say, no, I don't have, and I'll go and I'll come back, and again he's right there. और जब मैं उससे कहता कि मेरे पास तो कुछ नहीं है और मैं प्रार्थना करते हुए आगे जाके फिर पलट के वापस आता, फिर वो मांगता, मैं उससे कहता मेरे पास कुछ नहीं है। You know, I was feeling ashamed. मुझे इतना शर्म आ रहा था। He didn't have any shame. लेकिन उसके पास तो कोई शर्म ही नहीं था। And that's why Jesus said, blessed are the poor in spirit. जो आत्मा में दीन होते हैं, धन्य है वे लोग। Those who are not holding on to their dignity, saying, I've been to church 10 years. और कोई ऐसा जो व्यक्ति कहता है कि बड़े घमंड के साथ या गर्व के साथ कि 10 साल से मैं कलीसिया में जाता हूँ। You don't know how many pastors have laid hands on me. तुम्हें पता ही नहीं कितने लोगों ने मेरे सर पे हाथ रखा, पास्टर लोगों ने। That's not what we want this evening. What we want is people who are poor in spirit. आज हमें वैसे लोग नहीं, लेकिन जो मन में आत्मा में दीन है, ऐसे लोगों की जरूरत है। We are looking for those who are willing to become like babies, little children. आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो बच्चे बनने के लिए तैयार है। We are looking for those who can break themselves at the feet of Jesus and say, Lord, we want nothing but you. जो तैयार है प्रभु के सन्मुख में चरणों के सामने आके अपने आप को तोड़कर कहने के लिए कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं, बस आपकी जरूरत है। Revival will come to a people like that. ऐसे लोगों के पास बेदारी आ जाती है। The revival will come to a generation like that. ऐसे प्रकार की पीढ़ी के पास बेदारी आ जाती है। Jesus, he told us a beautiful story in Luke chapter 16. और यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में बहुत सुंदर वहां पे कहानी बताया। He spoke about a rich man and he spoke about a poor man. वहां पे एक अमीर व्यक्ति के बारे में और गरीब व्यक्ति के बारे में बताता है। There was a rich man who had everything that he wanted. अमीर व्यक्ति के पास वो सब कुछ था जो एक अमीर व्यक्ति के पास होना चाहिए। He has the best clothes. सबसे अच्छे कपड़े, He has the best friends. अच्छे दोस्त। You know, if you're willing to give party all the time, you will have always guests in your house. अगर आप जो है हमेशा पार्टी देने का आपका दिल है तो आपके घर पे हमेशा मेहमान रहेंगे। Have you experienced that? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव करके देखा? If you cook well, you will always have guests on your table. अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो आपके टेबल पे हमेशा मेहमान रहेंगे। If you have money to show off, to throw off, there will always be people who will be attracted to you because of that money. और अगर आपके पास में दिखाने के पैसे और फेंकने के पैसे हैं तो आपके इर्द गिर्द हमेशा मित्र रहेंगे। And on the other hand, there was a Lazarus. दूसरे दिशा में एक लाजर था। And the Bible says he was so poor that he
the only friend he had was the dogs who came to lick his sores. और परमेश्वर का वचन कहता है कि बस एक ही दोस्त जो उसके हुआ करते थे वो थे कुत्ते। कुत्ते आके उसके घावों को चाटा करते थे। There was no hospital, कोई हॉस्पिटल नहीं, no nurses, कोई नर्स नहीं, no helpers, कोई मददगार नहीं, no friends, कोई मित्र नहीं, nobody who will encourage him. कोई भी नहीं था जो उसे प्रोत्साहन दे सके। You know how he ate his food? आपको पता है उसने खाना कैसे खाया? He will eat his food by things that would fall off from this table of this rich guy. ये अमीर व्यक्ति के मेज में से जो भोजन गिरा करता था उसमें से वो खाया करता था। And that is how desperate this guy was. और इतना जो है वो उत्सुक था। That is how bankrupt, that is how empty he was. और उसका पूरा खाते में एक पैसा नहीं, उस प्रकार का खाली का जीवन था उसका। In fact, he must have had some good thing back in the day. लेकिन हो सकता है कि उसके जीवन काल में कुछ अच्छी चीजें भी रहे होंगे। But because of all the sores that he had and because of all the experience that life dealt with him, he was dumped onto the door of this rich man. और हो सकता है कि उसके जीवन में उन घावों के कारण या जीवन की परिस्थिति ने ऐसा एक मोड़ ले लिया कि उसे उस अमीर व्यक्ति के घर पे या उसकी जगह पर उसे जाना पड़ा। The Bible says one day the rich man died and one day the poor man Lazarus also died. एक परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन अमीर व्यक्ति मर गया और एक दिन लाजर जो गरीब था वो भी मर गया। Both of them died. वे दोनों मर गए। And after death there was a change in their lifestyle. लेकिन मृत्यु के बाद उनके जीवन में जीवन शैली में बदलाव था। What was the change? You know the story. आपको कहानी पता है क्या बदलाव था? What happened to the rich man? अमीर व्यक्ति के साथ क्या हुआ? The rich man, he was now in hell and he was in a lot of agony because there was so much of fire. His soul was being tormented in hell. और अमीर व्यक्ति जो था वो नरक में था और वहां उसके प्राण के ऊपर में बहुत से सताव हो रहे थे और वो पीड़ा में था। And then here is the poor guy Lazarus. यहाँ पे एक गरीब व्यक्ति लाजरस, He was enjoying his life after the death मृत्यु के बाद वो अपने जीवन का आनंद ले रहा था। because he was in a place of comfort. क्योंकि वो एक आरामदायक जगह पर था। He was in a place where there was everything that he needed in life. जिंदगी में जो कुछ भी उसे चाहिए था वो सब कुछ उसमें था। Amen. He was, the Bible calls it the bosom of Abraham. और वहां पे बाइबल कहता है परमेश्वर का शास्त्र कि वो अब्राहम के गोद में बैठा हुआ था। That he was in a place where there was people who were provided to comfort him. और वहां पे ऐसे लोग थे जो उसे सांत्वना देने के लिए भी थे। Going from an orphan to being a son. वहां पे एक अनाथ से एक बच्चा बनने तक, Going from a homeless place to becoming to being in a place where he has his own home in the bosom of Abraham. और अगर आप देखेंगे संसार में घर नहीं था लेकिन उसके पास स्वर्ग में अब्राहम का गोद था। Amen. So you see this transition that happened and we are thinking, wow, then I will have to die till I go to heaven and experience some good things. और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अच्छी चीजों को पाने के लिए मुझे मरने की जरूरत होगा। In a way, you do need to die. और हमें तो वैसा भी मरना ही है। In a way, you do need to die here on this side of eternity also. और अनंत काल के इस और भी हमें मरने की जरूरत है। We have to die to ourselves. आज हमें अपने स्वयं के लिए मरना है। We have to die to our own dreams. आज हमारे खुद के सपनों के लिए हमें मरना है। We have to die to even our own desires. आज हमारे खुद की इच्छाओं के लिए हमें मरना है। We have to die to our ambitions. आज हमारे इच्छाओं के लिए हमको मरना है। Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, unless a grain of wheat doesn't fall to the ground and doesn't die, it would just be fruitless. It would remain alone. जब तक गेहूं का दाना वो जमीन में गिर के मर नहीं जाता तब तक वो अंकुरित होकर फलवंत नहीं बन सकता। It will be the only grain of wheat in the whole of Nagpur. पूरे नागपुर में वो बस एक गेहूं का बीज बन के रह A जाएगा। very unique grain of wheat. एक अद्भुत और बहुत ही जो है विभिन्न प्रकार का बीज
गेहूं का बन के रह जाएगा, but it will be the only grain of wheat. लेकिन केवल अकेला गेहूं का बीज बन के रहेगा। But if it falls to the ground, लेकिन अगर वो जमीन में गिरता है, if it goes through the process of dying, अगर वो मरने की उस प्रक्रिया में से जाता है, if it gets buried, अगर उसे दफनाया जाता है, if it gets watered, अगर उसे पानी दिया जाता है, before you know, this grain of wheat will begin to produce fruit. तो आप जानने से पहले ये बीज जो है वो अंकुरित होकर वो बढ़ना शुरू कर देता है। Before you know, this one grain of wheat will begin to produce many more grains of wheat like और आपको itself. जानने से पहले ये बीज जो जमीन में गिरा हुआ है वो अंकुरित होकर और कई प्रकार के बीज को जो है गेहूं के बीजों को वो देना शुरू कर देता है। This is a transition that all of us have to go through. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से हर एक को गुजरना पड़ता है। Whether you're the rich guy or the poor guy, there is coming a transition in your life. चाहे आप अमीर व्यक्ति हो चाहे आप गरीब व्यक्ति हो, आपके जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है। There is a point where you have to die. एक ऐसा समय जहां पे आपको मरने की जरूरत है। Either you die or the life gets taken out of your hand. या तो आपको स्वयं के लिए मरना है या तो जीवन आपसे ले लिया जाएगा। See, for somebody who goes to heaven, they don't die. जो लोग स्वर्ग में जाते हैं वो मरते नहीं हैं। They give their life up so that they can go to heaven. वे अपना जीवन त्याग देते हैं ताकि वे स्वर्ग में जा सके। That's what Paul said. पौलुस ने ऐसा ही कहा। What did Paul say? पौलुस ने क्या कहा? For me to die is what? मेरे लिए मरना क्या है? Gain. लाभ है। He didn't say, oh, if I die, I will lose something. उसने ऐसा नहीं कहा, अरे मैं मर गया तो कुछ तो भी छोड़ के जा, कुछ तो भी चूकने वाला है। If I die, I will lose my bank balance. अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरा बैंक का पैसा खत्म ये हो जाएगा। If I die, my children will be fatherless. अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। There is no fear of death for a child of God. परमेश्वर के बच्चों के लिए मरना ये भय नहीं होता। Because a child of God, he is willing, he is ready to die. और परमेश्वर के बच्चे हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं। Do you understand what I'm saying? मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं? I'm not talking about all of you planning and waiting for death. और मैं ऐसा नहीं कि आप लोग योजना बनाइए आपके मरने का, वैसा नहीं कह रहा। I'm talking about you being able to die to yourself today. आज आप अपने स्वयं के लिए मरने की तैयारी करना है। Because if you don't fall to the ground like that grain of wheat, जैसे गेहूं के बीज के समान जो जमीन में गिरता है, आज वैसे जब आप अपने आप को नहीं दे देते, if you don't humble yourself like a little child, उस बच्चे की तरह जब आप अपने आप को नम्र नहीं कर लेते, if you do not humble yourself, अगर आप अपने आप को नम्र नहीं कर लेते, then there will come a point when you will be humbled. एक ऐसा समय आएगा जब आप नम्र होंगे ही। You will be forcefully humbled. और आपके ऊपर में ऐसा दबाव होगा कि उस दबाव के द्वारा आप नम्र हो ही जाएंगे। Because scripture is very clear. Those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करेगा वो नीचा किया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को नीचा करता है परमेश्वर उसे उठाता है। Amen. There is coming the transition point in Nagpur. नागपुर में एक बदलाव का समय आ रहा है। And when the transition happens, many who thought they were very rich will suddenly find themselves very poor. और जो लोग जब इस बदलाव की प्रक्रिया होगी, जो लोग सोच रहे थे कि हम तो बहुत अमीर हैं, वे लोग अपने आप को गरीबी में पाएंगे। And those who thought, oh, I don't have anybody or anything in the world, they will suddenly find themselves in a very safe and secure environment. इस संसार में रहते समय जो सोचते थे कि हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है, अपनापन कोई नहीं है, वैसे लोग जब बदलाव का समय आएगा तो वे वहां पे बहुत आरामदायक स्थिति में रहेंगे। Can I talk to the lovers of Jesus? यीशु मसीह से जो प्यार करते हैं, क्या उन प्रेमियों से मैं बात कर सकता हूं? Most times you will be the only lover of Jesus in your room. और अधिकतर समय आप अपने कमरे में केवल यीशु से प्यार करने वाले ही होंगे। You may be the only lover of Jesus in your room. हो सकता है आपके कमरे के अंदर आप अकेले एकलौते होंगे जो प्रभु से, यीशु से बहुत अधिक प्यार करते हैं।
See, you talk about any scenarios around Jesus. यीशु मसीह के आसपास के जो आप परिस्थितियों को जब देखते हैं, When Jesus is sitting with the 12, जब यीशु मसीह 12 के साथ बैठा करते हैं, only John kept his head on the chest of Jesus and wants to love Jesus. केवल यूहन्ना को आप देख पाएंगे जो अपने सर को यीशु मसीह के हृदय के पास में झुकाकर वो केवल यीशु मसीह से प्यार करना चाहता था। When Jesus is having a dinner in the house of Simon the Pharisee, there is only one lady that you find who is saying, I don't care about what you guys are doing, I'm here to love Jesus. और अगर आप देखेंगे सिमोन जो फरीसी था उसके घर पे जब वे लोग मेज के पास में बैठे हुए थे, वहां पर एक महिला आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी परवाह ही नहीं, लेकिन मैं यीशु मसीह से प्यार करना चाहती हूँ। Loving Jesus is usually a very lonely affair. और यीशु मसीह से प्यार करना ये जो है एक अकेलेपन का एक ऐसा समय है। Not everybody will understand your love for Jesus. और आपके उस यीशु के प्रेम को हर एक व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। Not everybody will understand why you are reading the Bible so much. और सभी लोग नहीं जान पाएंगे कि आप हमेशा पवित्र शास्त्र को क्यों पढ़ते हैं। So I'm not talking to the crowd today. I'm talking to those lonely people today. आज मैं भीड़ से नहीं बात कर रहा, लेकिन आज मैं अकेले जो अपने आप को समझ रहे उनसे मैं बातें कर रहा हूं। I'm talking to those people who feel like I'm the only one in my house who loves Jesus. और मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूं जो इस बात को कह रहे हैं कि मेरे घर में मैं अकेला ही तो हूं जो यीशु से बहुत अधिक प्यार करता हूं। In my church, nobody is praying for revival. I'm the only one in my church praying for revival. मेरे कलीसिया में कोई भी बेदारी के लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन मैं अकेला हूं जो मैं बेदारी के लिए प्रार्थना करता हूं। In my city, I don't see anybody desiring for this particular change. I may be the only guy praying for this thing in my city or in my nation. इस शहर में कोई भी नहीं दिखता जो उस बदलाव की अपेक्षा करता है, लेकिन मैं वो व्यक्ति जो उस बदलाव और उस चीज को जो हमें अपने जीवन में महसूस करता हूं। Some of you may feel alone like Lazarus today. आज आप में से कोई लाजर के समान अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होंगे, But I'm pointing out to you and saying there is a transition coming. There is a लेकिन change मैं coming. आज आपसे There is a कहना death चाहता हूं, and there is a resurrection. There is a death and there is a change of environment that is coming into this city. और मैं देखता हूं कि आपके जीवन में जो है मरी हुई अवस्था से जीवन, अंधकार की अवस्था से जो है ज्योति, और मैं आपके शहर में बहुत बड़े बदलाव को देखता हूं। I'm declaring there are certain in my spirit I see certain houses where there is prayer happening but nobody knows about it. Very soon those places will become big revival centers in this city. और मैं ऐसे जगह को देखता हूं जहां पे प्रार्थना होती है, लेकिन रहस्यमय रीति से प्रार्थना होती है। Even their pastors don't know this. ये पासबानों को भी नहीं पता कि उस घर में वैसी प्रार्थना चल रही है, But लेकिन वो घर जो है वो बेदारी का एक केंद्र बनने वाला है। Let me say this. Some of the biggest miracles in this city will not happen in churches, it will happen in homes. आप बड़े-बड़े चमत्कार कलीसियाओं में नहीं, लेकिन घरों में होते हुए देखेंगे। I'm not against the church. मैं कलीसिया के विरुद्ध में नहीं। I'm talking about real miracles. It will not happen in church services, it will happen in homes. और खरा चमत्कार जो है वो कलीसिया के आराधना के समय नहीं, लेकिन घरों में खरा चमत्कार होंगे। You wait and watch because there is a season of transition coming upon this city in the name of Jesus. क्योंकि आप बैठ के इंतजार करें, क्योंकि ऐसा एक समय हमारे शहर में आ रहा है जो बदलाव को लेके आ रहा है। And the Bible says when this transition happened, the rich man, he was very surprised. और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये बदलाव हो गया, अमीर व्यक्ति बहुत असमंजस में पड़ गया। He was not surprised because he was in hell. He was not surprised because he is in hell. और वो इस बात के लिए चकित नहीं था कि वो नरक में है। He is surprised because Lazarus is with Abraham. वो इस बात से चकित था कि लाजर वो स्वर्ग में है। Do you understand what I'm saying? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? His problem is not his pain. और उसका समस्या उसका दर्द नहीं है। His problem is Lazarus's lack of pain. उसका समस्या है कि वहां लाजरस जिस प्रकार से आनंदित था। All through his life, this rich man, he enjoyed seeing Lazarus in so much pain. और वो अमीर आदमी ने अपने पूरे जीवन काल में
लाजर के पीड़ा को अपनी आंखों से देख रहा था। All his life, he made fun of Lazarus. पूरा जीवन उसने लाजर के मजाक उड़ाने में बिता दिया। All his life, he said, you guys want to watch a comedy show? You should watch how Lazarus picks up the food from my table. और वहां पे जो मजाक के अंदाज में वो लोगों को कहता था कि अरे आपको आके देखना चाहिए कि कैसे लाजर मेरे मेज से खाना गिरता है उसे उठाता है वो। You know, when we had a few last year, before we had our third baby, we had a dog in our house. और तीसरा जब बच्चा हुआ उस समय हमारे घर पे एक Till then we had a dog. हमारे घर पे एक कुत्ता था। And it used to be fun seeing how this dog will look for pieces of food from our table. और हमेशा उस कुत्ते को देखने में बड़ा मजा आता था कि जब वो हम खाना खाते थे और मेज से जब खाना गिरता था तो उसको देखने का मजा बहुत अलग आता था। Because he may be in any corner of the house. भले ही घर के कोई भी कोने में रहेगा। All that we need to do is drop some food here and there and he will come and sweep it off. बस हमको करना होता था, खाना यहाँ वहाँ बिखराना पड़ता था और इंतजार करना पड़ता था। It was a fun show. बस बड़ा मजाकिया जो है वो माहौल हो जाता था। And I have a feeling that this rich man, he enjoyed the poverty of Lazarus. मैं इस बात को जो है सोचता हूँ कि अमीर आदमी ने गरीब लाजर का उस प्रकार का आनंद को ले रहा था। He enjoyed the lack that Lazarus had. लाजर के पास में जो घटी थी उसका वो आनंद ले रहा था। But there came a day लेकिन एक ऐसा समय आ गया when Lazarus's needs was met. जहां लाजर की सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई। There was no more sores on his body. अब और अधिक उसके शरीर पे घाव नहीं है। He doesn't need a dog to comfort him. He has Father Abraham who is comforting him. अब उसे और अधिक सांत्वना के लिए कुत्तों की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब उसके पास सांत्वना देने के लिए अब्राहम था। And all of a sudden, this rich man, he found he's looking at himself and he's saying, this is so bad. I'm in a very horrible place. और जब अमीर आदमी ने अपने आप को देखा, उसने कहा मैं बहुत दर्दनाक या दुर्भाग्य ऐसी अवस्था में पहुंच गया। And then he says, if only Lazarus can come with one drop of water and just help me. और वो अपेक्षा करता है और कहता है कि लाजर बस एक बूंद पानी को लेके मेरे पास आ जाए, वो काफी हो जाएगा। You know, I'm declaring this over some of you that there is going to come a time when the Lord will divinely exalt you over the people that have made fun of you. और मैं इस बात को जो है आज आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने आपके जीवन का मजाक बना के रखा है, उन्हीं के सामने परमेश्वर आप में से कईयों को उठाने वाला है। Hannahs, where are the Hannahs? The Lord will bless you in front of Penina. और जो है हन्ना के जैसे लोगों के साथ जो लोग हैं वो उनको परमेश्वर जो है आशीषित करेगा। In front of Penina. पेनाना के सामने उन्हें आशीष करेगा। Not in the absence of Penina, in the presence of my enemies, the Lord will prepare a table for me. और हन्ना के सामने जैसे वो पेनाना के सामने हन्ना को प्रभु ने आशीषित किया, वैसा ही परमेश्वर हमारे विरोधियों के या दुश्मनों के सामने प्रभु हमारे लिए मेज को बिछाएगा। So kindly don't be upset about the people that don't believe in your anointing in this season. इस समय में या इस काल में जो लोग आपके अभिषेक पे विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों के बारे में चिंता ना करें। It is not your job to honor you. यहाँ पे आपका आदर देना ये आपका काम नहीं है। Your honor, it comes from a very high place. क्योंकि आपका आदर ये सबसे ऊंचे स्थान से आपके लिए आता है। When your honor comes from that high place, जब आपका आदर सबसे ऊंचे स्थान से आ जाता है, everybody that needs to come and sit at your table, they will come running. जितने लोगों को आपके मेज के पास आना है, वे भागे भागे आपके मेज के पास आके बैठेंगे। Pastor, they will say, I just need a drop. और वे बस पास्टर कहेंगे एक बूंद की जरूरत है। I don't need all your money, just give me a drop. वो ऐसा नहीं कहेंगे कि आपका बहुत पैसा दो, बस वे कहेंगे एक बूंद दे दीजिए। All my life, I was the richest guy. I always thought I have everything, but all I need is a drop of prayer from your mouth, a drop of your anointing, a drop of the oil that is upon your life, a drop of your grace. I just need a drop. और वो व्यक्ति इस प्रकार से कहेगा, मेरे जिंदगी में मेरे पास पैसा था, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ था,
लेकिन तुम्हारे पास से बस एक बूंद अभिषेक, तुम्हारा एक बूंद अनुग्रह का, तुम्हारा एक बूंद उस प्रार्थना का मुझे आवश्यकता है। It is coming. The time is coming. ऐसा समय आ रहा है, The season is coming. ऐसा अवसर आ रहा है, The transition is coming. बदलाव आ रहा है, The change is coming. वो बदलाव आ रहा है। But my question is not to the rich people in this place. इस जगह पर जो अमीर हैं उनके लिए मेरा प्रश्न नहीं है। My question is to the poor people. मेरा प्रश्न उन गरीबों से है या दीन लोगों के साथ है। I'm asking you, will you remain humble? क्या आप अभी भी अपने आप को नम्र बनाए रखना चाहते हैं? Do you want to remain poor in spirit? क्या आप आत्मा में अपने आप को दीन बनाए रखना चाहते हैं? Will you ever come to a place where you're like, ah, no, I know everything? क्या या आप ऐसे जगह पर पहुंचना चाहते हैं जहां पे आप कहेंगे मुझे तो सब कुछ मालूम है? There was a letter that Jesus wrote to the church in the book of Revelation, the church in Laodicea. और लौदीसिया की कलीसिया में प्रकाशित वाक्य में जो है एक पत्र लिखा गया था। And Jesus told them, I know what you're thinking in your head. और वहां पे यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो मुझे पता है। You're saying that I am rich. तुम कह रहे हो कि हम बहुत धनवान हैं। You know, this church, it was born in great persecution. और ये कलीसिया का जन्म बहुत सताव के बीच में हुआ था। This church was born when there was a lot of opposition. जब ये उस कलीसिया के विरुद्ध में बहुत विरोध हो रहा था, उस समय ये कलीसिया का जन्म हुआ। But over the ages, a few decades later, this church is prosperous. लेकिन कुछ समय बीतने के साथ साथ ये कलीसिया बहुत अधिक धनवान बन गया। And now every pastor wants to preach in this church. अब हर एक पास्टर को उनके कलीसिया में प्रचार करने का अवसर चाहिए था। Because they know this church will give good offering. क्योंकि सभी को पता था कि ये कलीसिया में प्रचार करने से अच्छे भेंटें मिलेंगी। Everybody knows I want to be a member of this church. हर एक को लग रहा था कि उस कलीसिया का सदस्य बन जाए। Because this church, I mean, look at their life. Everybody is blessed. सोच के देखिए कि उनका जीवन कैसा था। हर व्यक्ति आशीषित ही था। You know, the fun part about walking with God is that it is impossible for you to walk with God and not to be blessed. और बड़े अचंभे की बात ये होती है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के साथ साथ तो चलते हैं लेकिन आशीष नहीं होते, ऐसा नहीं हो सकता। There's nobody who has walked with God and they've gone from glory to less glory to less glory to less. No, that has not happened. और जो प्रभु के साथ चलता है कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले महिमा में था, फिर कम महिमा, निचली महिमा में वो पहुंच गए, ऐसा नहीं हुआ। If you walk with God, you're bound to be blessed. जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो आप निश्चित आशीषित होते ही हैं। It doesn't matter how many sacrifices you've had to make in this season, your blessing will come to you. मायने नहीं करता कि इस अवसर पर आप कितने बलिदान करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे आप आशीषित होंगे ही। But the question is, when you do get blessed, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप आशीषें पा लेते हैं उसके बाद what will you do after that? उसके बाद आप क्या करेंगे? Because this church, when they were blessed, they said, now we have everything. जब ये कलीसिया आशीषित हुआ तो वो कहने लगे अब हम आशीषित हो चुके हैं। Now we have all the money in the world. इस संसार का सारा धन हम लोगों के पास में है। Now we have all the members that we were praying for. जितने कलीसिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे वो सारे सदस्य भी हमारे अंदर में आ गए। Now the best apostles are leading our church. सबसे अच्छे प्रेरित हमारे कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं। We have everything that we need. जो भी हमें चाहिए था वो सब कुछ हमारे पास में है। Now a church like that, Jesus is writing to a church like that. और यीशु मसीह उस प्रकार की कलीसियाओं को लिखता है। And he says, I know what you think. और वो कहता है तुम क्या सोच रहे हो, ये बात मुझे पता है। I know you're saying that you're rich. आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम बहुत धनवान हो गए। But let me tell you the truth. लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताना चाहता हूँ। I am going to reveal your real financial status. मैं तुम्हारा खरा आर्थिक स्थिति को तुम्हारे सामने प्रकट करना चाहता हूँ। You're very poor. तुम बहुत गरीब हो। Can I read that for you? This is a very scary verse in the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की किताब में जो है वो बहुत भयानक ऐसा वचन है और हम उसे पढ़ भी लेंगे। Are you ready? Is it okay if you read that verse? अगर वो वचन पढ़ लेते तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। Come on, church, talk to me. आइए आप बात कर सकते हैं। Yes. हाँ, I have not read the Bible till now. Few verses I'll read for you, okay?
और अभी तक बाइबल को मैंने पढ़ा भी नहीं हूं, लेकिन कुछ वचनों को जरूर पढ़ लूंगा। The book of Revelation, chapter 3 and verse 15. और प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और 15वां पद। The Bible says, I know all the things that you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। But since you're like lukewarm water, neither hot nor cold, I will now spit you out of my mouth. इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगालने पर हूं। Verse 17, are you ready? Read this very carefully. He says, 17वां पद हम ध्यान से पढ़ेंगे सभी। You say that I am rich, I have everything I want, I don't need a thing, and you don't realize that you're wretched, you're miserable, you're poor, you're blind, and you're naked. 17वां पद में पढ़ता हूं, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। Who is saying this? कौन कह रहा है ये? Not somebody who hates this church. जो ये कलीसिया से घृणा करता है वो नहीं कहता। Who is talking to this church? इस कलीसिया से कौन बातें करता है? Tell me. बताइए ना, कौन बातें कर रहा है? If you have the red letter Bible, you will know this is written in red. और अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पे जो है इसे लाल अक्षर में लिखा गया है। Which means this is spoken by Jesus. इसका मतलब है कि ये यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है। See, if somebody who hates me comes and tells me you're such a bad guy, you're a proud guy, arrogant guy, I don't mind. I will, no problem. और अगर कोई मुझसे घृणा करता है और वो आके इस बात को कहता है कि तू तो बहुत अपने आप को घमंडी सोच रहा है, तू ऐसा है वैसा है, तो ठीक है, मान सकते हैं। But if my wife comes and tells me the same thing, लेकिन मेरी पत्नी भी आके वही चीज मुझसे कहेगी तो my heart will break. मेरा दिल टूट जाएगा। Do you know why? आपको पता है क्यों? Because she loves me. क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। Because this is not like somebody who doesn't understand me. और ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति मुझे बिल्कुल समझता ही नहीं। This is a person who has seen my life behind the stage. वो ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने पर्दे के पीछे भी मेरे जीवन को देखा है। This is a person who knows how much I pray. ये वो व्यक्ति है जो जानता है कि मैं कितना प्रार्थना करता हूँ। This is a person who knows my real heartbeat. और ये व्यक्ति वो है जो मेरे दिल के धड़कन को भी जानता है। And if this person says that I am proud and arrogant, और जब ये व्यक्ति आके कहता है कि तू तो बहुत घमंडी और बहुत ज्यादा तू जो है विरोध वाला व्यक्ति है, I cannot say I don't care. मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं चिंता नहीं करता है तेरे बातों का। Because this is a person who loves me. लेकिन ये वो व्यक्ति है जो मुझसे प्यार करता है। She is not saying this to hurt me. वो ये बातों को मुझे ठेस लगने के लिए नहीं कह रही है। She is saying this to help me. ये मुझसे कह रही है ताकि वो मेरी मदद कर सके। What did I tell you today? The Lord is cleansing His church. मैंने क्या कहा शुरुआत में? परमेश्वर कलीसियाओं को शुद्ध कर रहा है। The Lord is releasing a cleansing anointing. परमेश्वर शुद्ध करने का एक अभिषेक को रिलीज कर रहा है। This cleansing process, it is long and it is also sometimes painful. शुद्ध करने की प्रक्रिया जो है कई बार लंबा समय लेता है और कई बार पीड़ादायक भी होता है। And Jesus, He speaks to the church and He says, you think you're rich, you're not. यीशु मसीह कहता है तुम अपने आप को धनवान सोच रहे हो, लेकिन तुम धनवान नहीं हो। I'm going to allow the X-ray of my fiery vision upon the church. और मैं कलीसिया के ऊपर में मेरे आग के उस एक्सरे को जो है मैं उतारता हूँ। And I'm telling you your real condition. और मैं उसके द्वारा मैं तुम्हारे खरेपन को, सत्यता को मैं लोगों के सामने उजागर करता हूँ। And I'm telling you, you are poor, you are miserable, you are wretched, you are naked and you are blind. और वो कहता है कि तू तो बिल्कुल अभागा है, तू तो तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा और नंगा है करके कहता है। Now Jesus, He is not just pointing out the mistakes and saying, you figure out the solution. और यीशु मसीह वहां पे उनकी गलतियों को उस प्रकार से बता के नहीं कहता कि तुम इसका समाधान खोज लो। He is giving the problem वो समस्या को दे रहा है and He is also giving the solution. और वहां पे समाधान को भी देता है। Do you want to read that? क्या हम उसे पढ़ ले? Come on, talk to me. Do you want to read क्या that? आप चाहते हैं कि हम उसे पढ़ ले? The next verse, it says, और उसके बाद के पद 18वां पद कहता है, it says, so I advise you to buy gold from me, gold that has been
purified by fire, then you will be rich. यहां पे लिखा है 18वां पद, इसीलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए. Amen. You know, my Bible says that you need to buy gold from me. और परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि तू सोना मुझसे मोल ले ले. Not that you just receive it free of cost, ऐसा नहीं कि तू बस फुकट में उसको ले ले, but you buy it from me. लेकिन तू मुझसे मोल ले ले. See, we are not talking about salvation over here, यहाँ okay? पे हम उद्धार के बारे में बात नहीं कर रहे. See, salvation is free. उद्धार मुफ्त में है. Anybody who has paid money for getting saved? कोई है यहाँ पे जो उद्धार के लिए पैसा दिया है? Please, we have to get you saved properly. If you have paid money, that is not the right salvation. अगर आपने पैसा देके उद्धार प्राप्त किया है तो वो सही उद्धार नहीं है. आपको सही रीति से आपकी अगुवाई करना पड़ेगा. If somebody has paid you money to get saved, that is also not right salvation. अगर आपको उद्धार में या उद्धार पाने के लिए किसी ने आपको पैसा दिया है तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है. That is not the right salvation. We have to do proper salvation today if that is your salvation. अगर वैसा आपका उद्धार हुआ है तो आज आपका सही रीति से उद्धार करना पड़ेगा. But here Jesus says, I want to give you pure gold. यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हें खरा सोना देना चाहता हूँ. Gold that is purified by fire. और ऐसा सोना जो आग में ताया हुआ है. This is not a gold that Bima Jewelries will sell you. और वो ऐसा सोना नहीं जो बीमा ज्वेलरी वाले बेचते हैं. I don't know what is the famous gold shops here in Nagpur. Those jewelers cannot give you this pure gold. नागपुर के जो भी सबसे अच्छे सोनार होंगे वो भी वैसा सोना नहीं दे सकते. This is a gold that is purified in the fire of heaven. ये एक ऐसा सोना है जो स्वर्ग के आग के द्वारा ताया गया है. But this is a gold that is something you have to buy. You don't get it free of cost. लेकिन ये एक ऐसा सोना है जो आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, जिसे आपको मोल लेना पड़ेगा. There is a price you will need to pay. आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी. There is a sacrifice that you will have to make. उसके लिए आपको एक बलिदान चुकाना पड़ेगा. There is a process you will have to go through. There is a humbling that you will have to go through. There is a dying that you will have to go through to receive this particular gold. और इस सोने को पाने के लिए आपको एक प्रक्रिया में से होके जाना पड़ेगा. आपको नम्र बनना पड़ेगा. आपको जो है अपने खुद के लिए मरना पड़ेगा ताकि इस खरे सोने को आप पा सके. Jesus says, if you get this gold, then you are rich. यीशु मसीह कहता है कि जब तुम इस सोने को पा लेते हो तो तभी तुम धनवान हो जाओगे. You know, another place, Jesus spoke about this beautiful illustration. He said, the kingdom of God is like somebody who found a treasure that is hidden in a land. और यीशु मसीह अपने दृष्टांतों में इस प्रकार से कहते हैं कि एक परमेश्वर का राज्य एक ऐसे खजाने के समान है जो खेत में गाड़ा गया है. The man who discovers it, you know what he does? जो व्यक्ति इस बात को खोज लेता है तो वो क्या करता है? He goes and he sells everything that he has. वो जाता है जो कुछ उसके पास है सब कुछ बेच डालता है. Not 10%, 10% नहीं, not 20%, 20% नहीं, everything. जो कुछ उसके पास है सब कुछ बेच डालता है. What all, just give me a wild guess of what did he sell? अब सोच के देखिए, बताइए मुझे क्या क्या बेचा होगा उसने. He sold his houses. उसने अपने घर को बेचा होगा. Let's say he has 2 houses. 2 घर होंगे उसके. He sold both the houses. दोनों घर उसने बेच दिया. He may have, let's say, 1 or 2 cars. हो सकता है कि 1-2 कार होंगे उसके. He sold both the cars. दोनों कार को बेच डाला. Because this is what the Bible says, he sold everything that he had. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ उसके पास था उसने सब कुछ बेच दिया. He may have stocks in the best companies in the world. He would have liquidated all his stocks. और जितना दुनिया के सबसे अच्छे कंपनी में उसका स्टॉक था होगा वो सब कुछ उसने बेच डाल दिया. He sold off all his assets, all the gold that he had kept. He sold everything. जितना जायदाद उसके पास था, सोना था, सब कुछ उसने बेच दिया होगा. You know why? क्यों पता है? To buy this land. ताकि वो इस जमीन को खरीद सके. Nobody has valued this treasury yet. लेकिन अब तक इस खजाने को किसी ने मूल्य नहीं दिया था.
Nobody has said this, if you give me this treasury, I will give you so much money. और किसी ने ऐसा नहीं कहा था कि इस खजाने को आप मुझे देंगे तो आपको मैं ये सब कुछ दे दूंगा। He is not valued. I mean, any businessman in this place, इस जगह पे कोई ऐसे व्यवसाय करने वाले बिजनेसमैन है क्या यहाँ पे? anybody who runs a business? कोई बिजनेस आप चलाते हैं, कोई है यहाँ पे? Good. Praise God. We want more businessmen in Nagpur. नागपुर में हमें बहुत से बिजनेसमैनों की जरूरत है। Amen. आमीन। But please tell me, is it a good business to sell everything to buy one property? अब बताइए मुझे, क्या ये व्यवहार सही है कि जितना हमारे पास है सब कुछ बेच डाल के एक जमीन का टुकड़ा खरीद ले? That is not good business. ये बिल्कुल भी अच्छा व्यापार नहीं है। You know, if you want to invest into something, you buy out of what excess you have, you buy. जब कभी आपको कोई चीज खरीदना होता है तो जो आपके पास अधिक है उसमें से आप जो है उसे खरीद लेते हैं। You don't sell everything you have to buy this little piece of land. आपके पास जो कुछ भी है सब कुछ बेच के आप एक जमीन का टुकड़ा नहीं खरीद लेते। But that is how the kingdom of God works. लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा ही काम करता है। It doesn't work according to how the business works. जैसे व्यापार काम करता है वैसा वो काम नहीं करता। It requires a kind of sacrifice, a kind of laying down that is extraordinary. और वहां पे बलिदान देना और अपने आप का त्याग करना बहुत ऐसे इसमें जरूरी है। You know, the question is not what you have sacrificed. The question is what have you kept back. यहाँ पे प्रश्न ये नहीं उठता है कि आपने क्या बलिदान दिया, लेकिन आपने क्या रख छोड़ा, ये प्रश्न उठता है। What have you still hidden in your pocket? अभी तक आपने अपने जेब में क्या बचाए रखा, वो जरूरी है। You know, the question is not if you give 10% to God. ये प्रश्न नहीं उठता कि आपने 10% परमेश्वर को दे दिया। The question is why are you using 90% on yourself? अब प्रश्न ये उठता है कि 90% आप अपने किस उपयोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। The question is not how much we are giving God. The question is how much are we keeping back from यहाँ God? पे हम कितना दे रहे हैं ये प्रश्न नहीं, लेकिन कितना हम अपने लिए बचाते हैं ये प्रश्न उठता है। A life that is surrendered, a life that is sacrificed. जो बलिदान समर्पित किया गया, जो जीवन बलिदान किया गया है, That is a life that will receive gold, gold that is purified in fire. वे ऐसे लोग होंगे, ऐसा सोना प्राप्त करेंगे जो स्वर्ग के आग के द्वारा ताया गया है। Amen. आमीन। Jesus said, I see that you are poor, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम बहुत जो है गरीब या दीन हो, but I want you to come to me. लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आए। You will not get this gold from your pastor. ये सोना तुम्हें तुम्हारे पासबान से नहीं मिलेगा। This is not a gold you will get from your church. ये ऐसा सोना तुम्हारे कलीसिया से तुम्हें नहीं मिलेगा। You will have to sit at my feet. इसके लिए तुम्हें मेरे चरणों पे बैठना पड़ेगा। This is a gold you will get only by exclusive personal devotion to the Lord himself. और ये सोना हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ जो हम अध्ययन और मनन में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं। There is a blessing in you doing church work. कलीसियाओं के काम करने की वो आशीष है जो आप पाते हैं। Definitely. हाँ, निश्चित तौर पे है। If you serve your church, you will receive blessing. कलीसिया की सेवा करते हैं तो उसकी आशीष आप पाएंगे। How many of you go early to church to put the chairs and to set up and do whatever? The Lord has prepared a special blessing for कितने you. लोग ऐसे जो समय के पहले जाके कलीसिया में चाहे वो दरी बिछाना या कलीसिया में चेयर लगाने का काम करते हैं, निश्चित तौर पे उन सबों को परमेश्वर आशीष देगा। But there is a blessing that comes from sitting at the feet of Jesus. लेकिन यीशु के चरणों में बैठने का भी आशीष यीशु मसीह हमें देता है। See, there were two women. There was one Martha and there was a Mary. और यीशु मसीह जो है जो कहानी बताते जिसमें एक मार्था और मरियम है। And what did Martha do? मार्था क्या करती है? She's preparing food. वो जाके खाना बनाती है। But what is Mary doing? लेकिन मरियम क्या कर रही है? She's sitting at the... मरियम यीशु मसीह के चरणों पे बैठी हुई है। So what is Mary doing? मरियम क्या कर रही है? She is buying gold from Jesus. यीशु मसीह से वो सोना मोल ले रही है। Do you know what Martha is doing? मार्था क्या कर रही है? She is serving the body of Jesus. वो यीशु मसीह के देह को सेवा दे रही है। Amen? Who is she cooking for? For Jesus. यीशु मसीह के लिए वो तैयारी कर रही थी। Come on, talk to me. मुझसे बातें कर रहे आप। Martha was not cooking for herself. मार्था अपने खुद के लिए खाना थोड़ी बना रही थी। Martha was cooking for Jesus. मार्था यीशु मसीह के लिए खाना बना रही थी। So, if just because you're serving the body of Christ,
क्योंकि आप यीशु मसीह के देह की सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब that doesn't mean that you cannot sit at the feet of Jesus. इसका ये मतलब नहीं कि आप यीशु मसीह के चरणों में नहीं बैठ सकते। We are so busy serving the body of Christ that we don't have time to sit at the feet of Christ. आज दुर्भाग्य की बात यह है कि कई लोग परमेश्वर के देह के सेवा करने में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि यीशु मसीह के चरणों में बैठने का उनके पास समय ही नहीं है। I'm preaching to myself. मैं अपने आप के लिए जो है प्रचार कर रहा हूँ। All the pastors said amen. सारे पासबान आमीन कहेंगे। You know, the book of Revelation, it was not written to the church, it was written to the pastors. और प्रकाशित वाक्य की किताब जो है वो पासबानों के लिए लिखा गया था। That's why it says to the angel of the church of Laodicea write this. और लौदोकिया की कलीसिया के दूतों को लिखा गया। Who is the angel? The pastor, the leader, the messenger of that church. स्वर्गदूत कौन होते हैं? उस कलीसिया के पासबान जो परमेश्वर के वचन का प्रबोधन करते हैं। And to the angels, to the pastors, God is saying, you think you are rich, but you are actually poor. और स्वर्गदूत जो है जिस प्रकार से कहा गया है वहां पे पासबानों के बारे में कहा गया है कि तुम अपने आप को बहुत धनवान सोचते हो लेकिन बहुत अभागा हो। Can I read the next two lines and we will pray soon, okay? और दो आगे के पदों को पढ़ के मैं प्रार्थना करेंगे। It says, first, what he says, he says, you need to buy gold from me. Second, he says, now also buy white garments from me, so you will not be ashamed of your nakedness. 18वां पद का जो पहले भाग में हमने देखा कि पहले तो जो है सोना खरीदने के बारे में कहा गया और उसके जो दूसरे भाग में है और श्वेत वस्त्र ले लो कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। Amen. Amen. What is the second thing we need to buy? दूसरी बात हमें क्या मोल लेना है? White garments. हमें श्वेत वस्त्र। Who is saying this? कौन कह रहा है ये? Jesus is saying this. To whom is he saying it? यीशु मसीह कह रहा, किससे कह रहा है? Not to the people of the world. यहाँ पे संसार के लोगों से नहीं कह रहा, Not to unbelievers. यहाँ अविश्वासियों के लिए नहीं कह रहा, Not to those who don't have spiritual life in them. जिनके अंदर में आत्मिक जीवन है ही नहीं, ऐसे लोगों को नहीं बता रहा। He is talking to the church. वो कलीसिया से बातें करता है। He is talking to his beloved bride. वो अपने बहुत प्रिय दुल्हन से वो कहता है। He is saying, I see that you are naked. वो कहता है कि मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम नंगे हो। I want you to come to me and I want you to take the covering that I will give you. और वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आए ताकि तुम जो मैं एक जो है तुम्हें ढांपना चाहता हूं उस ढांप को तुम ले लो। You know, this covering, there is a price to receive this covering. और इस ढांपने को जो है लेने के लिए उसका कुछ कीमत है। See, please understand, we are not talking about forgiveness here. हम यहाँ पे क्षमा के बारे में बात नहीं कर रहे। Many people may think we are talking, many people, I have heard people teach this verse saying Jesus is talking about forgiveness of sin because white garments, no? और यहाँ पे जो है मैंने कई लोगों से इस प्रकार के प्रचार को सुना है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे श्वेत वस्त्र कहा गया है, इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि तुम क्षमा कर दो। No. This is not talking about forgiveness of sin. Forgiveness of sin, you cannot pay a price for forgiveness of sin. और यहाँ पे जो है पापों की क्षमा के लिए जो है आप कीमत नहीं चुका सकते। The only person who could pay for the forgiveness of sin is Jesus. और जो पापों की क्षमा केवल एक जो दे सकता है वो है यीशु मसीह। And he paid the price on the cross. क्रूस पर उसने उस कीमत को चुका दिया है। You can never pay a rupee to be forgiven. आज आप क्षमा प्राप्ति के लिए बिल्कुल उसका कीमत नहीं चुका सकते। Amen? आमीन। You don't need to do anything. All you need to do is say, Jesus, forgive me, and the grace will flow from the cross to your house and you will be forgiven. और आपको जो है उस क्षमा प्राप्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, और वो क्षमा जो अनुग्रह है वो आपके घर तक आपके जीवन में प्रवाह होकर आ जाएगा। But some of us, we are forgiven, but we are still naked. आज कई लोग क्षमा प्राप्त कर चुके हैं लेकिन अभी भी वे नंगे हैं। Do you know why? क्यों पता है? Because we don't have a covering. क्योंकि अभी तक हमारे पास में जो है ढांपा जाना नहीं है। Because, you know, in the New Testament, there was this particular story of the sons of Sceva. और सेवा के जो है बेटे के बारे में एक कहानी है पुराने नियम में, In the New Testament. नए नियम में।
And these sons of Sceva, they go and they cast out demons. और ये स्केवा के जो है बच्चे जाके दुष्टात्माओं को निकाले करते थे। They were believers. वे लोग विश्वासी थे They understood how to activate their faith. और उन्हें पता था कि उनके विश्वास को किस प्रकार से कार्यों में प्रकट किया जा सकता है। They also knew who were the leaders of the church. और वो जानते भी थे कि कलीसिया के अगुवे कौन हैं। And that's why they said, in the name of Jesus that Apostle Paul is preaching, I command you to get out. और वहां पे उन्होंने कहा कि प्रेरित पौलुस जो प्रचार करते हैं उस यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू निकल जा। Amen? And do you know what this demon said? इन दुष्ट आत्माओं ने क्या कहा पता है? The demon said, I know Jesus वो कहते हैं कि मैं यीशु को तो जानता हूं, and I know Paul, मैं पौलुस को भी जानता हूं, but who are you? लेकिन तू कौन है? And these demons, they jumped on these guys and they all ran back naked. और वहां पे ऐसा लिखा है कि सारे दुष्ट आत्मा उसके अंदर में ऐसा घुस गए कि नंगे होके वो लोग वहां से भाग गए। Because they were in actuality, after the transition, their reality got exposed. They were actually naked. और जब वहां पे एक बदलाव हो गया तो वास्तविकता वहां पे प्रकट हो गई कि वो वास्तव में वो लोग नंगे ही थे। Because they did not have a covering. क्योंकि उनके पास में ओढ़ा जाना नहीं था। They had a belief system, उनके पास में एक विश्वास करने का तरीका था, but they were not covered. लेकिन वो ढांपे नहीं गए थे। Church, can I talk to you? Do you have a covering over your life? कलीसिया, आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन पर जो है ओढ़ा जाना या फिर कवरिंग है आपके ऊपर में? Do you know what it means to be submitted to your apostle Paul? और प्रेरित पौलुस को जो है समर्पित करने का क्या मतलब होता है, क्या हम उसे समझ पाए हैं? Do you know what it takes for you to be committed to a local church and to remain under the covering of your local leadership? और अपने स्थानीय कलीसिया में, स्थानीय अगुवे के कलीसिया में जो है हमें बने रहने का क्या मतलब होता है कि हम जान पाए हैं? Because if you don't have that covering, if you're not paying a price to remain under submission, under covering, then we will be like naked people. और अगर हम जो है उस प्रकार से अपने आप को ढापे नहीं गए हैं स्थानीय कलीसिया में, पासवान के बीच में, तो मानो हम ऐसे लोग हो चुके हैं जो बिना ढापे गए हैं, हम नंगे व्यक्ति की तरह हो चुके हैं। That is why this guy is saying, I have everything, I'm rich, I have everything. वो व्यक्ति कहता मैं धनवान हूं, मेरे पास तो सब कुछ है, I don't need any covering. मुझे किसी के ढापने की जरूरत नहीं है, I don't need to be under anybody's submission. मुझे किसी के अधीनता में रहने की भी जरूरत नहीं, I don't need to be accountable. मुझे किसी को जवाब देने की, जवाबदेही की मुझे जरूरत नहीं है। That's why Jesus said, you don't know, if demons come, they will reveal who you truly are. इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जब दुष्ट आत्मा आएंगे तो तुम्हारे बारे में सारा पोल खोल देंगे। Demons will show that you're actually without a covering. और दुष्ट आत्मा इन बातों को कह देंगे कि तुम बिना ढांपे गए व्यक्ति हो। So Jesus is inviting the church today. यीशु मसीह आज कलीसियाओं को न्योता देता है, Come and buy from me a white garment. आके मुझसे श्वेत वस्त्र मोल ले लो। Do you know, can I teach for 5 more minutes? Can I? 5 मिनट और ले सकता हूँ क्या? Do you know that your pastors, your leaders that God has given you, they function as your covering. और आपके पासवान और आपके अगुवे जो हैं आपके लिए एक ढांपे जाने के रूप में काम करते हैं। Because the Bible says you need to submit to your leaders because they have to give an account to God for your problems and for your lives. परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को अपने अधिकारी या फिर अगुवों के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करो, क्योंकि अगुवों को इसका आपके जीवन का जवाबदेही देना होता है। लफड़ा कौन किया? तू किया। लेकिन who is paying for it? Your pastor. आपका पासवान। Do you understand what I'm saying? है। The Bible says for the mistakes that you and I make, आप और मैं जो गलतियां करते हैं, you know who has to give an account for it? आपको पता है आपके गुनाह गलतियों के लिए किसको जवाब देना पड़ता है? Our pastors. हमारे पासवानों को। That is why the Bible says they are our covering. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वे ढांपे गए हैं। That they are our covering because they can say, give him one more year. और वहां पे वो कह सकते हैं कि प्रभु इसे एक और मौका दे दे, Give him one more chance. उसे प्रभु एक और अवसर दे दे। Let me put a little more pesticides and a little more, extra help, and let me try to help him. I will give more attention to this guy this next year
please give him one more ear. क्योंकि वो जो है परमेश्वर का सेवक प्रभु के सामने कहता है कि प्रभु मैं ये साल कीटनाशक जो है उस पे छिड़कूंगा, खाद डालूंगा, मैं उस पे काम करूंगा और अगले साल ये फल लाए इसके लिए मैं देखरेख करूंगा। If you don't have a man of God in your life, आपके जीवन में अगर परमेश्वर के जन नहीं हैं, ouch, ouch, then you and I, we are naked. आप और मैं हम नग्न हो चुके हैं। And Jesus looking at the church यीशु मसीह कलीसियाओं को देखता है who's washed by the blood, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, who faithfully serving the church. जो कलीसिया का विश्वासयोग्यता के साथ में सेवा कर रहे हैं। And he says, come to me and buy gold from me. और वो कहता है कि आके मुझसे तुम शुद्ध सोना मोल ले लो। Come to me and buy white और garments. वो कहता है कि मेरे पास आके श्वेत वस्त्र को मुझसे मोल ले लो। The last one, आखिरी वाला, it says, and ointment, and buy ointment for your eyes so that you will be able to see. और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। And everybody said, I need that anointing. और सभी लोग कहे कि इस अभिषेक को प्रभु मुझे जरूरत है, I need that oil. उस तेल की मुझे जरूरत है, I need that ointment. मुझे उस अभिषेक की मुझे जरूरत है, सुरमा की जरूरत है, So that my eyes can be opened. ताकि मेरे आंखें खुल जाए। I've been living spiritually blind. अब तक मैं आत्मिक अंधेपन में जीवन व्यतीत कर रहा था। You know that believers can also live in spiritual blindness. और विश्वासी भी जो है आत्मिक अंधेपन में अपने जीवन बिता सकते हैं। Did you know that? आपको पता है कि ये बात? That is why Apostle Paul, when he prays for the church at Ephesus, he says, Lord, open the eyes of their heart. और पौलुस जब इफिसस के कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है तो वो ये कहता है कि प्रभु इनके आंखें खोल दे, So that they can see the true riches that is waiting for them. ताकि वो उनके लिए जो रखा गया खरा धन और उन चीजों को वो देख सके। Paul is praying for whom? पौलुस किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? You know, the church at Ephesus was the most mature church in the New Testament. अगर आप नए नियम में देखेंगे तो इफिसस की कलीसिया सबसे परिपक्व ऐसी कलीसिया थी। You know, not like the church at Corinth. कुरिन्थ की कलीसिया जैसे नहीं थी। उधर तो पूरा मारा-मारी हो रहा है. But to the church at Ephesus, it's a very mature letter that is written. और वहां पे इफिसस की जो कलीसिया थी, परिपक्व कलीसिया को परिपक्व पत्र लिखा गया था। And he says, Lord, let their eyes be opened to see these realities. और वो कहता है कि प्रभु इनके आंखों को खोल दे ताकि वे सत्य को देख सके। So that their eyes may be opened to see the true riches, the true love, the true depths that God has prepared for them. और ताकि उनके आंखें खुल जाए और वे खरा धन, खरा बातें जो यीशु मसीह ने रखा है उन चीजों को वो देख सके। Jesus, during his days, he looks at the people that were surrounding him and he began to cry. He says, this is like blind leading the blind. यीशु मसीह के इर्द गिर्द जब भीड़ इकट्ठा होती थी, यीशु मसीह जब उनको देखता तो वो कहता था कि ऐसे अंधे लोग हैं जिनकी अगुवाई करने के लिए कोई नहीं है। Blind who is leading the अंधे blind. हैं जो अंधों की अगुवाई कर रहे हैं। He looked at a generation of people who didn't have shepherds and he says, the blind is leading the blind. और वहां पे ऐसे पीढ़ियां बीत चुके जहां पे उनको अगुवाई चरवाहा करने के लिए कोई नहीं था, वहां पे अंधा अंधे की अगुवाई कर रहा है। How can you convince the world outside that there is riches in Christ when your eyes cannot see the riches in आप Christ? बाहरी लोगों को कैसे आप जाके उन्हें प्रमाणित कर सकते हैं इन बात को कहते हुए संसार के लोगों को कि यहाँ पे परमेश्वर का बहुतायत है, जब आप खुद उन बहुतायत का अनुभव नहीं कर पाए? Because you're constantly complaining. आप हमेशा जो है शिकायत ही तो करते हैं। You're living like the wilderness is the end. आपको ऐसा लग रहा है कि मरुभूमि जंगल जो है ये बस आखिरी है। The only person who didn't complain is Moses, is because Moses, his eyes were open. और एक व्यक्ति जिसने शिकायत नहीं किया था वो है मूसा, क्योंकि मूसा के आंखें खुल चुके थे। Not because Moses went to Canaan, मूसा कनान गया इसलिए नहीं, but his eyes were open. लेकिन उसके आंखें खुल गए थे। All these other 2 million people, their eyes were closed. और 2 मिलियन लोग जो थे उनके आंखें बंद थे। And so they constantly kept murmuring and grumbling and complaining about everything that they did not have. इसीलिए जो उनके पास नहीं था, इसीलिए वो लोग हमेशा उसके लिए कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना और हमेशा शिकायत किया करते थे।
Sometimes I feel sad about Christians, Pastor, because they are more sad than the people of the world. कई बार पासवानों मुझे बुरा लगता है मसीहों के बारे में कि संसार के लोगों से ज्यादा दुखी मसीह लोग ही दिखते हैं. Sometimes when they come to church and they're singing, the joy of the Lord is my strength. You know, they have no joy, they have no strength also. But they're singing the joy of, nobody will be convinced by your song. और जब कलीसिया में गीत गाया जाता है कि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, ना आनंद दिखता है ना ताकत भी दिखता है. And you're complaining and murmuring about your present situations because your eyes are closed. You're blinded. जो वास्तव परिस्थिति को देखकर आप बार बार शिकायत ही करते हैं क्योंकि आपके आंखें बंद हो चुके हैं और आप सत्य को नहीं देख पा रहे हैं. Can I finish with this last parable? आखिरी एक दृष्टांत को बता के मैं खत्म करूंगा. Jesus said यीशु ने कहा that there was one kind of seed that was sown. एक प्रकार का बीज जो बोया गया था, When it began to bear fruit, there was life, और उसमें जीवन था, it came out. वो उभरा, तो जो उभरा है वो, But when it came out, there were thorns and thistles around this plant. लेकिन जब ये पेड़ बढ़ने लगा तो उस पेड़ के इर्द गिर्द में जो है वो कांटे और ऊंट कटारे थे. And Jesus explained this parable to say, this is the anxieties and worries of everyday life. यीशु मसीह ने उन्हें समझाते हुए कहा कि ये दैनिक जीवन की बहुत सी परेशानियां हैं जो हमारे इर्द गिर्द होता है. And Jesus said यीशु ने कहा that this thorns and thistles, it killed real life that was there in this plant. और उसने कहा कि ये कांटे और ऊंट कटारे जो ये पेड़ में जीवन था, उस जीवन को इन्होंने खत्म कर दिया, मार दिया. So in other words, you can have real life and yet you can be a victim of your environment if your eyes are not open. अगर आपके आंखें नहीं खुले हैं तो आसपास के परिस्थितियां जो है वो बहुत बड़ा आपके जीवन में हमला कर सकते हैं और आपके जीवन को तबाह कर सकते हैं. One problem is enough to destroy your walk with God. परमेश्वर के साथ का आपके चाल को, चलन को जो है एक समस्या तबाह कर सकती है. One persecution, एक सताव, one person saying something bad about you and you will lose your faith. एक व्यक्ति बस आके हमारे बारे में कुछ बुरा बोलने दो, हम अपने विश्वास से खो देते हैं. One job loss and that's it. You don't want to go back to church again. एक नौकरी अगर हमारी छूट जाती है, दोबारा कलीसिया में मुझे कभी नहीं जाना है. You know why? Because your eyes are not open to see the reality of your strength in Christ. आज यीशु मसीह में जो हमारी ताकत है, आज हम उस सत्यता को अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं. That is why we are getting discouraged. इसीलिए तो हम निराश होते हैं. I'm here to prophetically open certain eyes today. आज मैं यहाँ पे हूँ ताकि मैं भविष्यवाणी के उस मंडल में कुछ लोगों के आंखें खोल सकूं. You will never get into discouragement ever again in your entire life. In आपके Jesus. संपूर्ण जीवन में आज के बाद कभी भी आप निराश और हताश नहीं होंगे. Depression will not enter into your house one more time. एक और बार हताशा आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगा. The spirit of complaining and murmuring will not be tolerated in your church. आपकी कलीसिया में कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना कभी भी उसे सहन नहीं किया जाएगा. Lack of faith will not be tolerated in your household in Jesus' name. आपके पूरे घराने में कभी भी अविश्वास को कभी भी सहन नहीं किया जाएगा. In the name of Jesus, your eyes are opening today to see the Lord as He is. आज रात परमेश्वर आपके आंखों को खोल रहा है ताकि वो जैसा है आप उसे वैसा देख सकें. Because when you see Him as He is, you will see yourself as you are. और जब आप उसे जैसा वो है देखेंगे तो जैसे आप है वैसे आप अपने आप को देखेंगे. Because you are made in His image. क्योंकि आप उसके स्वरूप में बनाए गए हैं. And when you see Him, you see yourself. जब आप उसे देखेंगे तो आप अपने आप को देखेंगे. When you see Him, you see your possibilities. जब आप उसे देखेंगे तो आप अपनी काबिलियत को देखेंगे. When you see His glory, you see your glory. जब आप उसकी महिमा को देखोगे तो आप अपनी महिमा को देखोगे. When you taste and see that He is good, you will experience that goodness now flow out of your heart, out of your belly, out of your spirit. That same goodness will now begin to flow. जब आप उसे चक्कर देखोगे कि वो कितना भला है तो आपके जीवन से वो अच्छाइयां बहनी शुरू हो जाएगी. Your eyes are opening, your eyes are opening.
opening. Your eyes are opening today in the name of Jesus. यीशु के नाम से इस समय आपकी आंखें खुल रही है, आपकी आंखें खुल रही है, आपकी आंखें खुल रही है। Every lack of joy be quenched in Jesus' name हर today. एक आनंद की घटी इसी समय खत्म हो रही है। Let the joy of the Lord visit your home today. आज परमेश्वर का आनंद आपके घर पे मुलाकात करने पाए। Relationships between parents and children are being healed today in Jesus' name. आज यीशु के नाम से माता पिता और बच्चों के बीच संबंध फिर से पुनर्स्थापित हो रहे हैं। Relationships between husband and wives are being reunited, restored today. आज पति और पत्नी के बीच के संबंध फिर से पुनर्स्थापित हो रहे हैं। Certain relationships in your church that you lost, it is being restored in Jesus' name. और जितने कलीसिया में जो संबंध टूट चुके हैं, फिर से वापस परमेश्वर उन सारे संबंधों को जोड़ रहा है। Because the joy of the Lord is visiting you one more time. क्योंकि परमेश्वर का आनंद आज एक और बार आपसे मुलाकात करने आ रहा है। Can you jump up to your feet and let's pray together? हम सब अपने जगह पर कूद के खड़े हो सकते हैं ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। We are going to pray together. मिलके प्रार्थना करेंगे। And I'm asking for three questions. मैं 3 प्रश्नों को पूछता हूँ। How many of you want gold? आप में से कितने लोग सोना चाहते हैं? How many of you want that special white garment covering? आप में से कितने लोग श्वेत वस्त्र एक ढांपे जाने के रूप में चाहते हैं? And how many of you are saying, Lord, I want my eyes to be open today? आप में से कितने लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रभु आज मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें खुल जाए। This prayer is not for those who want healing. जिनको चंगाई चाहिए उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं है। The Lord has already healed you, don't worry, but this prayer is not for that. प्रभु ने आपको चंगाई दे दिया है, ये आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं है। This prayer is not for those who want blessing financially. जो आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहते हैं उन लोगों के लिए आशीष नहीं है, प्रार्थना नहीं है। This prayer is specifically for these 3 categories. ये प्रार्थना इन 3 ऐसे विभागों के लिए है। The first category is for those who are saying, I want a revival in my prayer life. पहले ऐसे लोग जो ऐसा कह रहे हैं, मेरे प्रार्थना जीवन में मुझे बेदारी चाहिए। I want gold. I value the gold more than just serving the body of Christ. मैं परमेश्वर के देह की बस सेवा करने से बढ़कर मैं इस सोने के मूल्य को मैं जानता हूं, वो मुझे चाहिए। The second prayer is for those who are saying, I want to remain under covering and submission. दूसरे ऐसे प्रकार के लोग जो कह रहे हैं कि मुझे जो है किसी के ढापे जाने में बनी रहना है। And the third prayer is for those who are feeling very blinded by the worries and the struggles of everyday life, but you're saying my eyes need to be open to see my true reality. तीसरे प्रकार के ऐसे लोग होंगे जो कह रहे हैं कि आसपास का माहौल ने मुझे ऐसा अंधापन बना दिया कि मैं परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पा रहा हूं। आज मेरे आंखें खुल जाने पाए कि मैं प्रभु की महिमा को देख सकूं। If you're praying any of these 3 prayers, I want you to come ahead and we'll pray together. अगर आप में ऐसे कुछ लोग जो इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, अगर यहाँ पर है तो आप जो है सामने आ सकते हैं प्रार्थना के लिए। And we will pray together. हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। I don't have time to pray for everybody, सबों के लिए प्रार्थना करने का मेरे पास समय नहीं है, but we will pray together. हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। This is my prayer, ये मेरी प्रार्थना है that we will find gold today. कि हम आज खरा सोना प्राप्त करें। That we will find gold in His presence today. आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम आज सोना प्राप्त करें। That we will find gold at His feet. और आज उसके चरणों में हम सोना प्राप्त करें। That we will find gold in our times of prayer. और हमारी प्रार्थनाओं के समय में हम सोना को प्राप्त करें। A few minutes. कुछ और समय। I want you to cry out for that pure gold that is refined by fire. आज आप आंसू बहा के, आप चिल्ला के, वो सोना जो आग में ताया गया है, उसके लिए आप प्रभु से मांगे। Because the Lord says, I see that some of you are poor and miserable and wretched. और प्रभु इस बात को कहता है कि आप में ऐसे कुछ लोग हैं
जो अभागा है, जो कंगाल है और दरिद्र अवस्था में है। But I want to give you real gold. लेकिन मैं तुम्हें खरा सोना देना चाहता हूँ। The real gold you can have is a close relationship with Jesus. वो शुद्ध सोना जो प्रभु यीशु मसीह के साथ का एक घनिष्ठ संबंध है। Your prayer life, आपका प्रार्थना जीवन, your devotional life, आपका मनन का अध्ययन का जीवन, that is the real gold. यही तो खरा सोना है। That's why Jesus said Mary has chosen a more valuable thing. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने सबसे उत्तम भाग को चुना है। And so, Father, I pray over your children right now. पिता, इस समय आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। And I release gold over their hearts. उनके जीवनों में सोने को मांग लेता हूँ। And I release a fresh anointing upon their prayer lives. उनके प्रार्थना जीवन में ताजा अभिषेक मांग लेता हूँ। And I release a fresh grace to sit at your feet. ताजा अनुग्रह प्रभु आपसे मांग लेता हूँ ताकि वे आपके चरणों में बैठ सके। Every lethargy, every tiredness, we reject it. We say no to it in Jesus' name. आज हर एक चीज के लिए हम थका हुआ कह देते हैं और यीशु मसीह के लिए हम हाँ कह देते हैं। All the excuses that we used to give, we say no to those excuses. जितने बहाने हम किया करते थे, आज से हम उन बहानों के लिए नहीं करके बोलेंगे। And today we are committing to buy pure gold one more time. आज हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं ताकि हम एक और बार खरा सोने को मोल ले सके। And Lord, we thank you for the grace you're giving us to be under covering. प्रभु, आज जो अनुग्रह आप हमें दे रहे हैं कि हम प्रभु किसी के कवरिंग में रहे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। Every person in this place that is praying with me that don't have a man of God over their life, प्रभु, यहाँ पे जो मेरे साथ मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके जीवन पर परमेश्वर के जन नहीं है, Lord, we pray that you would show them who is their covering. प्रभु आप उन्हें दिखाइए कि उनके जीवन के लिए वो ढापे जाने वाला कौन है। Give them that white garment that they need. जो श्वेत वस्त्र की उन्हें जरूरत है, आप वो प्रदान करें। Somebody who would give an account to God for their activities. और उनके कार्यों के लिए जो जवाबदेही हो सके। Somebody that they can be in submission to. जिनके प्रति वे समर्पित हो सके। There shall be no unchurched Christians in Nagpur in Jesus' name. नागपुर में कोई भी अमसीही ऐसा व्यक्ति न रहने पाए, अकलीसिया व्यक्ति न रहने पाए। Yeah, they are Christians but not going to church. There will be not a single Christian who is not submitted in a church. ऐसा कोई भी मसीह न होने पाए जो किसी कलीसिया के अधीनता में न रहने पाए। Every child of God will have a man of God, will have a family of God, will have an Abraham, will have a church to be submitted under. हर एक विश्वास करने वाले के पास में विश्वासी मंडली और पिता के रूप में अब्राहम और परमेश्वर उनका ढापा जाना होने पाए। And Father, we pray right now in Jesus' name पिता यीशु मसीह के नाम से इस समय हम प्रार्थना करते हैं for our eyes to be opened. कि हमारे आंखें खुल जाने पाए। Keep your hand on your eyes. Keep your hand on your eyes. अपने हाथ को अपने आंखों पे रख ले। Eyes be opened. आंखें खुल जाए। The inner eyes, eyes of my heart be opened. हमारे अंदरूनी आंखें, हृदय के आंखें खुल जाने पाए। What no eye has seen, let my eyes begin to see. जिन आंखों ने अभी तक नहीं देखा, हमारी आंखें ऐसे चीजों को देखने पाए। Lord, I release the ointment, the salve, the oil of healing over the eyes of your dear children. इस समय प्रभु आपके प्रिय जनों पर प्रभु उस सुरमे को, उस मलम को जो घावों को ठीक करता है, आपके बच्चों के आंखों पे हम उसे लगा देते हैं। We thank you for a new vision. नए दर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। We thank you for a new perspective. नए दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद देते हैं। We thank you for a new revelation. नए प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं। We thank you for a new understanding. नए समझ के लिए हम धन्यवाद देते हैं। My life will never be the same again. मेरा जीवन पहला जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। And in Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। And everybody said an amen. सभी लोग कहेंगे, Can I talk to you? क्या मैं बातें कर सकता हूँ?
when you go back home, जब आप घर वापस जाएं, your problem may still remain the same, हो सकता है कि आपकी समस्या बिल्कुल वैसी ही बनी रहे, but now your eyes are open. लेकिन अभी आपकी आंखें खुल चुकी हैं। Now you will see your problem differently. आप अपनी समस्या को बिल्कुल दूसरे तरीके से देखेंगे। Now you will see yourself as the solution maker. अभी आप अपने खुद को समस्या का समाधान के व्यक्ति के रूप में देखेंगे। Amen. Gold, सोना, garments, श्वेत वस्त्र and ointment. और मलम, सुरमा। What are the three things? तीन चीजें क्या हैं? Gold, white garments, and ointment for your eyes. आपकी आंखों के लिए जो है सुरमा। Will you go back and meditate on that? क्या आप जाके इन वचनों पे मनन फिर से करेंगे? The Lord is cleansing His church. परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को शुद्ध कर रहा है। The Lord is drawing us near to Him. परमेश्वर हम सबों को उसके नजदीक लेके जा रहा है। Revival is coming. बेदारी आ रही है। This is preparation for revival. और बेदारी के लिए ये तैयारी है। Amen. आमीन। When you're going back, make sure to encourage one another and say you're preparing for revival. और जब आप वापस जाते हैं तो आप एक दूसरे को प्रोत्साहन दीजिए कि आप बेदारी के लिए तैयार हो रहे हैं। Look at somebody that you have not met and tell them you're being prepared for revival. और जिनसे आपने अभी तक मुलाकात नहीं किया, ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करके बोले, प्रभु आपको बेदारी के लिए तैयार कर रहा है। The Lord is preparing you for revival. प्रभु आपको बेदारी के लिए तैयार कर रहा है। The Lord is preparing you for Nagpur. प्रभु आपको नागपुर के लिए तैयार कर रहा है। The Lord is preparing you for India. परमेश्वर भारत के लिए आपको तैयार कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. Come back with prayer tomorrow night, okay? और कल रात हम प्रार्थना पूर्वक फिर से वापस आएंगे। But I want you to pray a little more than what you prayed today. आज आपने जितना प्रार्थना किया है उससे अधिक आप कल प्रार्थना करेंगे। Increase your hunger a little more. अपने भूख को थोड़ा सा और अधिक बढ़ा लेंगे। Stretch your faith a little more. थोड़ा सा अपने विश्वास को और तानेंगे। We are going from glory to greater glory. क्योंकि हम महिमा से अति महिमा में प्रवेश कर रहे हैं। Amen. आमीन। The Lord is setting us up very beautifully. प्रभु जो है हम सबको बहुत अद्भुत और सुंदर रीति से तैयार कर रहा है। And we have to be ready for it. Amen. हमें उसके लिए तैयार रहना है। Amen.